Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video, what we are going to do is now we have finished up with the payload. So we have done the numerical, we have understand the concepts of payload. So we will move on to the next chapter. So in the coming videos, after explaining you the next chapter, what the next chapter is going to be about, we will make sure that we practice some of the payload numerical as well, so that you guys get some practice. So in today's video, what I'm going to teach you is the chapter number 2 for the general navigation. Okay, and that would be the critical point. So in today video, we will keep it short and we will just understand the basic concept of what do you mean by critical point, how to get the critical point, why it is so important to get a critical point in terms of flight, and the various other factors. So let's start. So today we will be talking about the critical point. So now the critical point, it is also known as the point of equal time. This is also known as the point of equal time, or you can say it is also known as the equi time point. Okay, equi time point भी से बोलते हैं. So equi time point, ETP. So we have come to know that these are the three names: critical point, point of equal time, and equitime point. So let's understand what these points are and why we need to calculate these points. So let's assume an example. एक example लेके इसको समझते हैं. So suppose guys, here is a flight path. So we are going from Delhi, which is point A, और हम लोग जा रहे हैं मुंबई. We are traveling to Mumbai. So now the flight takes off from Delhi and it is going to Mumbai. Now there will be a point in between the flight path, or you can say the point along the track of your flight, from where the point to the home base, which is your departure airport, and your destination airport will be same. मतलब कि सपोज ये एक पॉइंट है जिसको कि मैं क्रिटिकल पॉइंट का नाम दे देता हूँ. तो यहाँ से, इस पॉइंट से अगर आप जा रहे हो अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि बी पॉइंट पे, तो तब भी इतना टाइम लगेगा. और अगर आप क्रिटिकल पॉइंट से वापस अपने डेस्टिनेशन की डिपार्चर की तरफ जा रहे हो, तो भी इतना टाइम लगेगा. सो ये दोनों जो टाइम होंगे, ये सेम होंगे. तो हम क्रिटिकल पॉइंट जो है उसको कैलकुलेट क्यों करते हैं, कि वो उसमें उसका इंपॉर्टेंस क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. गाइस सी, अगर फ्लाइट के अंदर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, सपोज यू आर अ कैप्टन ऑफ द फ्लाइट. तो जब आप फ्लाइट स्टार्ट करते हो, द ग्राउंड द डिस्पैचर विल कैलकुलेट दिस क्रिटिकल पॉइंट फॉर यू एंड इट विल बी गिवन टू यू. So you know, if suppose Delhi to Mumbai, let's just, I'm assuming, suppose it is 300 nautical miles. Suppose, okay. So now you know that around, let's say, 100 nautical mile, or whatever it is, 150 nautical mile, which depends upon the speed. See, the distance to your critical point depends upon your speed. So ऐसा नहीं है कि हाफ पे मार्क में होगा कि भाई 300 नॉटिकल माइल है, तो 150 नॉटिकल माइल पे ही मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा. ऐसा नहीं है. क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो कि डिस्टेंस है क्रिटिकल पॉइंट का मेरे डिपार्चर पॉइंट से, वो डिपेंड करेगा मेरी स्पीड पे. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है. नाउ एज अ कैप्टन, आई नो कि मैंने अपनी फ्लाइट शुरू करी और मुझे मेरा क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है 150 नॉटिकल माइल. सारी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे मेरा क्रिटिकल पॉइंट बता दिया गया कि जब आप फ्लाइट शुरू करोगे और जब आप 150 नॉटिकल माइल की फ्लाइट कर लोगे, तो वो आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा. ठीक है. तो गाइज मैंने अपनी फ्लाइट शुरू करी और मैं 150 नॉटिकल, मैंने अपनी फ्लाइट स्टार्ट करी एंड मैं 150 नॉटिकल माइल पे रीच कर गया. तो मुझे ये पता है कि अगर इस पॉइंट से नाउ आगे की फ्लाइट पे या इस पॉइंट से मेरे पास कोई भी इमरजेंसी आती है, सपोज, एक बार इसको I'll draw a bigger diagram for you so that you understand better.
let's just have a look here. ओके, सो सपोज ये मेरा फ्लाइट पाथ था, ठीक है। अब मैंने पॉइंट ए से इसको स्टार्ट करा और पॉइंट बी पे मैं जा रहा था, तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। ये मेरा हो गया क्रिटिकल पॉइंट। आई विल पुट इट विद द रेड। ओके, लेट्स जस्ट टेक दिस कलर। तो ये मेरा हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब मुझे पता है एज अ कैप्टन कि अगर मेरे इस एरिया में इधर इधर कोई भी मेरी इमरजेंसी आती है क्रिटिकल पॉइंट से पहले पहले, तो द गुड थिंग टू डू फॉर मी इज टू रिटर्न बैक टू माय होम बेस, क्योंकि मेरे को होम बेस जाने में कम टाइम लगेगा। मैं डेस्टिनेशन तो जा ही नहीं सकता क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। बट अगर मेरी इमरजेंसी आती है क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, तो या तो मैं अपने होम बेस चला जाऊं या मैं अपनी डेस्टिनेशन पे चला जाऊं, मेरे को दोनों जगह सेम टाइम लगेगा। और अगर मेरी कोई भी इमरजेंसी आती है क्रिटिकल पॉइंट के बाद, देन देर इज नो पॉइंट कि मैं अपने होम बेस पे वापस जाऊं। देन मेरे को फ्लाइट डेस्टिनेशन पे ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को टाइम उतना ही लगेगा यहाँ से जितना मुझे होम बेस पे जाने पे लगेगा। तो एज अ कैप्टन मैं डिसीजन लूंगा कि मैं होम बेस पे क्यों जाऊं, मैं तो अपनी डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तब भी उतना टाइम लग रहा है, तब भी उतना टाइम लग रहा है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट इसलिए जरूरी होता है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए। तो सपोज गाइस कोई भी इमरजेंसी आती है, मान लो इंजन फेलियर है, I have a engine failure. One of my engine, number one, either or number two, has failed. So now, as a captain, I what I'll do is I'll first check. Okay, we are 80 nautical miles, so we have not reached a critical point. So what we can do is we have to go back to our home base, क्योंकि वहीं मेरा टाइम कम लगेगा इंजन फेलियर में। अच्छा, अब नाउ आप लोग सोचोगे कि हम बॉम्बे से ही क्यों जाएं, कोई पास में ए फील्ड होगी, वी विल लैंड देयर। एब्सोल्युटली यू कैन लैंड एट द नियरेस्ट ए फील्ड, बट दिस क्रिटिकल पॉइंट इज गिवन टू यू आल्सो इन ऑर्डर टू मेक योर डिसीजन मेकिंग इजी। तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाती है। आप ऑलमोस्ट, ये आपको तो पता है कि आप डेस्टिनेशन तो जा ही नहीं सकते अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट से पहले इंजन फेलियर हो गया। एंड सपोज गाइज ऊपर ऑन बोर्ड जैसी फ्लाइट टेक ऑफ करी, कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, लाइक एनी person is having a heart attack or whatever it is, and you will have to land the aircraft as soon as possible. तो जब आपको पता है एज अ कैप्टन, व्हाट आई विल सी, नाउ द क्रू इन्फॉर्म मी कि कैप्टन की सो एंड सो पर्सन को इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी एंड वी विल हैव टू लैंड। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आई लास्ट में फर्स्ट ऑफिसर कितना डिस्टेंस हुआ है, वो मेरे को बताएगा सर द डिस्टेंस इज 160 नॉटिकल माइल। अब मुझे पता है मेरा क्रिटिकल पॉइंट तो था 150 नॉटिकल माइल, तो मैं उससे तो आगे आ गया हूँ। तो मैं डिसीजन लूंगा कि मैं अपने डेस्टिनेशन तक फ्लाइट को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 नॉटिकल माइल आगे आ चुका हूँ। सो देर इज नो पॉइंट दैट आई गो बैक टू माई होम बेस। ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है जहां से आपका टाइम सेम होता है। तो इसको एक बारी और फेयर अप करके मैं बता देता हूँ। सपोज दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट। सो इट इज द पॉइंट अलोंग द ट्रैक। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ पॉइंट अलोंग द ट्रैक। देखो आपके ट्रैक पे ही एक पॉइंट है from which the flying time to the two selected bases, the flying time to the two selected bases, यानी कि base A and base B will be same। एंड तभी गाइज इसको हमने नाम दिया है पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम का। इसकी डेफिनेशन पे ही इसका वो है, पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम। और इसी को घुमा के बोल देते हैं इक्वी टाइम पॉइंट, मतलब कि बराबर टाइम ले रहे हैं। यहाँ से जाओगे ए पे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, और यहाँ से जाओगे बी पे तो भी उतना ही टाइम लगेगा। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हमें समझनी पड़ेगी, फिर हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हम इसमें समझते हैं। आई टेक अप डिफरेंट कलर है, सो ओके, लेट मी टेक दिस। ओके, तो ये हो गया मेरा क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज माय बेस ए, दिस इज माय बेस बी।
सो अब मैं मान लेता हूं कि जो मेरा टोटल डिस्टेंस है वो है डिस्टेंस डी, मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस है वो है मेरा डी। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज, जो मेरी ए, जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, यहां से अगर मैं होम जाता हूं तो इसको, ए पॉइंट को गाइस मैं बोल सकता हूं मेरा होम बेस, क्योंकि यहां से मैं टेक ऑफ कर रहा हूं। तो उस स्पीड को मैं मान लेता हूं एच। और अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट से डेस्टिनेशन की तरफ जाता हूं तो गाइस उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ओ। ओ क्या है, मेरी आउटबाउंड स्पीड। मतलब आउटबाउंड स्पीड का मतलब है वो स्पीड फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट। ये दोनों जो स्पीड है ना, होम बाउंड स्पीड और आउटबाउंड स्पीड, ये हम लोग क्रिटिकल पॉइंट से ले रहे हैं, ना कि ए से ना कि बी से। और ये जो दोनों स्पीड है, होम बाउंड और आउटबाउंड, ये दोनों स्पीड जो है गाइस, ये हमारी ग्राउंड स्पीड है, ना कि ट्रू ए स्पीड। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज योर होम बाउंड ground speed and this is your outbound ground speed. You are outbound from critical point, you are homebound from critical point। तो ये जो भी स्पीड है ये सब फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट, ये भी कहां से है, फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो नाउ हमने ये लिख लिया कि ये होम बाउंड ग्राउंड स्पीड हो गई और ये आउटबाउंड ग्राउंड स्पीड हो गई और ये हो गया डिस्टेंस मेरा डी। अच्छा, अब जो डिस्टेंस सबसे जो डीजीसीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट आपके एज अ प्रैक्टिकल करियर में भी काम आएगा, वो आता है आपको दो चीजें निकालनी होती हैं। एक तो आपको निकालना है डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट, जिसको कि मैं डीसीपी लिख लेता हूँ। और एक आपको निकालना होता है टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट, जिसको मैं टीसीपी लिख लेता हूं, टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट, डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, सबसे पहले डिस्टेंस का हम देखते हैं कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो वो कौन सा डिस्टेंस होगा। गाइस देखो, जो डिस्टेंस और टाइम होता है ना क्रिटिकल पॉइंट का, वो आपके होम बेस से देखा जाता है। तो ए से लेकर सीपी यानी कि क्रिटिकल पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसको मैं लिखूंगा डीसीपी। और ये मेरे को जितना टाइम यहां से यहां आने में लगेगा उस टाइम को मैं लिखूंगा टीसीपी। दैट वुड बी माय टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच माय क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, टीसीपी। सो इसका हम लोग इसको डिराइव करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिकली आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि डीजीसी एग्जाम्स में यू विल हैव टू पुट फॉर्मूला डायरेक्टली। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए, मैं इसकी डेरिवेशन आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा एक्स वाई जी मैथमेटिक्स है ही नहीं। आपको बस एक बेसिक फॉर्मूला जो कि हर एक पायलट को पता होना चाहिए, वो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाइस ये फॉर्मूला लगेगा और इसी से हमारी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। देखिए सिंपल है, दोबारा से मेरे को ये ड्रॉ करना पड़ता है, तो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, और ये है मेरा पॉइंट बी। और गाइज ये मैंने ले लिया मेरा क्रिटिकल पॉइंट। अब मेरे को पता है गाइज कि मेरे को सपोज यहां से यहां मैं जा रहा हूं, ए से लेकर सीपी तक जा रहा हूं, तो वो डिस्टेंस जो है, मैं इसको डिफरेंट कलर से मैं लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट्स टेक ग्रीन। तो यहां से यहां तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो है x1, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है x2, और जो पूरा डिस्टेंस है वो है मेरा डिस्टेंस d। तो एक चीज तो अब हमें पता है कि जो मेरा x1 है और जो मेरा x2 है वो मेरा किसके बराबर है, डिस्टेंस d के। पर एक चीज यहाँ देखने वाली है कि a से लेकर ये x1 डिस्टेंस कवर करने में भी मुझे उतना टाइम लगेगा और x2 कवर करने में भी मुझे उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि मैं कहूँ क्रिटिकल पॉइंट से, और क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां से मैं चाहे b जाऊं या जहां से मैं चाहे a जाऊं, मेरा टाइम तो उतना ही लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो टाइम होता है वो हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब, और जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा मेरा स्पीड इनटू टाइम, राइट।
तो अब एक गाइस एक चीज देखिए, अब ये मेरा x1 क्या है, डिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। अब मैंने आपको बताई थी कि अगर आप यहाँ से होम बाउंड जा रहे हो तो आपकी स्पीड होगी होम बाउंड ग्राउंड स्पीड h, और यहाँ से आप आउटबाउंड जा रहे हो तो आपकी आउटबाउंड स्पीड क्या होगी, ओ। तो x1 क्या हो गया, x1 हो गया आपका स्पीड इनटू टाइम, राइट। स्पीड क्या है यहाँ से, होम बाउंड, और टाइम को मैंने मान लिया t। और सिमिलरली यहां से अगर मैं x2 डिस्टेंस निकालूं तो मेरी स्पीड क्या है, o, आउटबाउंड, और टाइम हो गया मेरा t। तो ये हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस d। ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मेरा t तो कॉमन आ गया, राइट। तो मैंने t को कॉमन निकाल लिया, तो मेरा क्या बचा, h प्लस o इक्वल टू d। तो यहां से गाइज मेरा टाइम आ गया। टाइम मतलब मेरा कितना आ गया, d डिवाइडेड बाय o प्लस h। ठीक है। तो यहां से t आ गया मेरा, t मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट से मुझे होम बेस जाने में या फिर मेरी डेस्टिनेशन पे जाने में कितना टाइम लगेगा, वो है d डिवाइडेड बाय o प्लस h, जहां h जो है आपकी होम बाउंड ग्राउंड स्पीड है, और जो o जो है वो आपकी आउटबाउंड ग्राउंड स्पीड है। ठीक है। अब आपको टाइम पता चल गया, बट हमें तो निकालना है डिस्टेंस। तो गाइज ये देखिए, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम तो मुझे पता है, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब गाइस स्पीड क्या है मेरी, स्पीड तो मेरी है h, राइट, क्योंकि होम बाउंड स्ट्रेच ले रहे हैं ना हम लोग। और टाइम मैंने यहां से कैलकुलेट कर लिया, वो मैं उठा के यहां डाल दूंगा, d डिवाइडेड बाय o प्लस h, राइट। तो गाइज मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, d इंटू एच डिवाइडेड बाय o प्लस h। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट का। दिस इज माय फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको इसकी डेरिवेशन बता दी है। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ आई विल हाईलाइट दिस थिंग फॉर यू। तो ये डेरिवेशन आपको याद करनी है, याद जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज नो बडी विल बी आस्किंग यू द डेरिवेशन, बट अगर आपको पता है देन यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस कि आपको ईज़ी पड़ेगा। बट क्योंकि जैसे ही अगर फॉर्मूले हम लोग डायरेक्ट रट लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट आपको अगर ये चीज़ पता है कि ये कैसे आई है, देन इट वुड बी ईज़ी फॉर यू टू सॉल्व न्यूमेरिकल। एंड आल्सो व्हेन यू गिव योर एटीपीएल एग्ज़ाम्स, आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं और कोई भी पूछ लेगा तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर चीज़ के अंदर। ठीक है? तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट का। तो इधर मैं लिख देता हूँ इसको, डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट। ओके। तो ये हमने डिराइव कर लिया डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, अब इसमें एक चीज और, अब हमें निकालना है टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिए, टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ मैंने आपको बताया था स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट का डीसीपी है, और डीसीपी कहाँ से आएगा, डीसीपी इस फॉर्मूले से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्पीड। अब कितना टाइम लगेगा आपको क्रिटिकल पॉइंट पे जाने के लिए, वो ये कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा, जस्ट अ सेकंड, आई टेक एन इरेजर अप हियर। ओके, जस्ट, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट द टाइम, so we have taken it here, distance upon speed। so now this speed हम कौन सी लेंगे, हम इधर लेंगे g full और o। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। गाइस देखिए, जब भी आप टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम आपको क्रिटिकल पॉइंट जाने के लिए लगेगा, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फुल वैल्यू लेते हैं। बेसिकली फुल और हाफ का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर हमने ना अभी तक 3 स्पीड पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है एच स्पीड, जिसको कि हमने बोला होम बाउंड ग्राउंड स्पीड। एक हमने पढ़ी है ओ, ओ का मतलब हो गया मेरा आउटबाउंड ग्राउंड स्पीड।
तो ये जो दोनों स्पीड हैं गाइस, होम बाउंड और ग्राउंड आउटबाउंड ग्राउंड स्पीड, ये बेसिकली हम लोग इंजन फेलियर ट्रू ए स्पीड लेते हैं, ठीक है। दीज आर इंजन फेलियर ट्रू एयर स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। गाइस हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमने ये माना था कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ से मेरी स्पीड है होम बाउंड एच, और यहाँ से मेरी स्पीड है आउटबाउंड ओ। तो गाइज यहाँ से जो हमने एच ली है, वो हमने मान के चला है, या हमने ये वो स्पीड ली है कि हमारा एक इंजन फेल है, वन ऑफ आवर इंजन इज फेल्ड। बिकॉज अगर हम इसमें जी फुल ले लेंगे, तो जी फुल लेने का तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि हम तो क्रिटिकल पॉइंट वर्स्ट के सिनेरियो और इमरजेंसी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो स्पीड लेंगे वो हम लोग वर्स्ट के सिनेरियो की लेंगे, कि वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है कि दो में से मेरा एक इंजन जो है फेल हो जाएगा। और ऐसे ही आउटबाउंड भी जो हम स्पीड लेते हैं गाइस, वो भी हम लोग वर्स्ट के सिनेरियो लेके लेते हैं कि अगर मेरा एक इंजन फेल हो जाएगा तो मैं अपनी स्पीड कितनी मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये एच जो है और ये ओ है, ये अलग अलग कैसे है। गाइस ये मैंने अभी आपको बताया था, ये दोनों जो है ग्राउंड स्पीड है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन योर विंड कंडीशन, कि आपकी विंड की क्या कंडीशन है। सपोज मेरी विंड इस डायरेक्शन में 10 नॉट की चल रही है, तो जो मेरी होम बाउंड स्पीड है उसमें जो ट्रू ए स्पीड में से, मैं अब ये मेरे को होम बाउंड जाने के टाइम पे तो मुझे हेडविंड मिल रही है ना, तो मैं अपनी ट्रू ए स्पीड में से 10 माइनस करूंगा, वो मेरी होम बाउंड स्पीड होगी। और गाइस जो मेरी आउटबाउंड स्पीड होगी उसमें मैं 10 ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे टेल विंड मिल रही है, तो वो मेरी ओ हो गई। बस इतना ही फर्क होता है एच और ओ में। बट हमें एच और ओ में ये ध्यान रखना है कि ये वो ट्रू ए स्पीड है जो हम एक इंजन फेलियर अज्यूम करके ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं आपको। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज ये, टू कैलकुलेट, ये मैं लिख देता हूं, टू कैलकुलेट डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट वी टेक एच एंड ओ स्पीड एज ट्रू ए स्पीड विद इंजन फेलियर। तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे ना क्रिटिकल पॉइंट का, तब आप इंजन फेलियर स्पीड लेंगे, क्योंकि हम तो भैया वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो सोच के निकाल रहे हैं ना डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट। और दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखनी है, टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट। तो जब टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब हम लोग इंजन फेलियर स्पीड नहीं लेते, ठीक है। टू कैलकुलेट द क्रिटिकल पॉइंट वी टेक दी हायर वैल्यू, यानी कि फुल वैल्यू लेते हैं दोनों इंजन की, ठीक है। जी फुल, इसीलिए वहां पर जी फुल लिखा हुआ है, ठीक है, जी फुल और ओ। तो गाइस इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है। टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट हमारा हो गया। तो अब मैंने आपको एक चीज समझाई इसके अंदर, कि जब आप, मैं इसको मार्क कर देता हूं, जब आप डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तब आप इंजन फेलियर स्पीड को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आप फुल स्पीड लेंगे विदाउट इंजन फेलियर, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझो, अभी आपको दोनों फॉर्मुलेज मैंने बता दिए, टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट का और डीसीबी का। अभी जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपको हो रही होगी वो इसमें हो रही होगी कि होम बाउंड और आउटबाउंड ग्राउंड स्पीड में, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। तो गाइज इसमें क्या होता है, जब आप डीजीसीए के क्वेश्चन करते हो ना, तो डीजीसीए आपको वैल्यू कैसे देता है, वो आपको ऐसे देगा, वो आपको ऐसे देगा कि ट्रू एयर स्पीड ऐसे 200 बाय 180, ऐसे लिख के दे देगा क्वेश्चन के अंदर। तो जब आपने डीसीपी कैलकुलेट करनी है, तो आपने कौन सी ट्रू स्पीड लेनी है, आपने वर्स्ट केस वाली लेनी है जिसमें आपका इंजन फेलियर हो, तो आप कौन सी लोगे, कम वाली। तो आपने लोअर वैल्यू लेनी है जब आपने डीसीपी कैलकुलेट करना है। पर जब आपने टीसीपी कैलकुलेट करना है तो आपने फुल वैल्यू लेनी है, तो ज्यादा वाली लेनी है। तो बहुत सिंपल तरीका है, इसको ऐसे ही समझ लो। आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा 200/180, तो जब आपने डीसीपी कैलकुलेट करना है तो आप कम वाली ले लेना, और जब आपने टीसीपी कैलकुलेट करना है तो आपने ज्यादा वाली ले लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डीसीपी यानी कि डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट और टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट का फंडा।
तो इसकी मैं समरी में आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ। और इसके अलावा कोई भी डाउट अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल देना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा दोबारा। सो बेसिकली समरी के लिए हमारे पास पहला फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट, एंड डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट इज़ नथिंग बट योर डी मल्टीप्लाइड बाय एच डिवाइडेड बाय ओ प्लस एच। ये तो हो गया मेरा डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट। अब समरी के लिए टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट, टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या है, टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट है मेरा डी सी पी, यानी कि डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय माय जी फुल और ओ, ओ मतलब आउटबाउंड। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन मैं हर वैरायटी के ले लूंगा एग्जाम्पल, ताकि आपको ये जी फुल और ओ और एच में सारी कंफ्यूजन जो है खत्म हो जाए। ठीक है। समरी का तीसरा पॉइंट क्या है, टू कैलकुलेट द elapsed टाइम टू द क्रिटिकल पॉइंट ऑल इंजन टैस और ग्राउंड स्पीड इज यूज। ठीक है। टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट वी टेक ऑल ऑल इंजन मतलब दोनों इंजन की, ऑल इंजन ट्रू ए स्पीड और ग्राउंड स्पीड, मतलब कि हम लेते हैं ज्यादा वाली वैल्यू। और एक पॉइंट आ गया इसके अंदर, टू कैलकुलेट डीसीपी वी टेक इंजन फेलियर ग्राउंड स्पीड और ट्रू ए स्पीड। तो ये तीनों आज की जो समरी है उसमें हमने ये दोनों फॉर्मूले पढ़े। ठीक है। डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट और टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट का, एंड दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हेन वी कैलकुलेट द टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट वी टेक ऑल इंजन टैस एंड ग्राउंड स्पीड, एंड व्हेन वी कैलकुलेट डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट वी टेक इंजन फेलियर ग्राउंड स्पीड और टैस। सो ये आपको जितना भी आज मैंने पढ़ा है, यू स्टडी दिस, डेरिवेशन देखो इसका कैसे आया है, होम बाउंड ग्राउंड स्पीड क्या है, आउटबाउंड ग्राउंड स्पीड क्या है, डिस्टेंस में कौन सी ग्राउंड स्पीड और टैस लेते हैं, और अपना टाइम में कौन सी लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ो। ये कॉन्सेप्ट आने के बाद इसको टॉपिक को हम लोग और आगे ले जाएंगे और इसके हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और कुछ पॉइंट मैं आपको इसके और बताऊंगा। तो यहाँ मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिख भी देता हूँ कि एच इज होम बाउंड ग्राउंड स्पीड एंड ओ इज योर आउटबाउंड ग्राउंड स्पीड। ठीक है। ये हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप ये पूरी समरी को आज आप रिवाइज करें, एंड in the next video we will continue the topic. Please guys, do one thing, do like the video, because the more you like the video, you know, it will be shown to other viewers out there so that it can help all the students who are preparing for the DGC exam. Most probably DGCA exam will be conducted in the next year in the month of February, I guess. So I will try to finish up all the navigation metrology topics by that time, so you can you know, study with me. I would be right now I'm putting videos at an interval of 2 or 3 days, but I will try to put one video a day. So do like the video, do share it with your friends, because that gives me motivation to make more videos for you. And do comment below if you have any doubt. Yes, so thank you so much for watching the video. Do revise this topic and I will see you next time. Thank you so much.